क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। कमला दास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, इनको आपको जरूर से देखना है। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, माई स्टोरी। उसके अलावा आपको देखना है माई एंडलेस डेज किसने लिखी है, माई स्टोरी सो फार किसने लिखी है। ठीक, इसके ऑथर्स देखने हैं कि किसने, राइटर कौन है इनके, वो देखना है। कमला दास के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आपको देखने हैं। अगर आप PYQ ही बहुत अच्छे से करके चले जाएंगे, तो अगर आप BA ऑनर्स इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, इंग्लिश का पेपर जो है वो क्रैक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द बेल जार इज रिटन बाय। बेल जार जो कि एक नॉवल है और लिखी है सिल्विया प्लैथ ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन सिल्विया प्लैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। इस क्वेश्चन नंबर 16, थ्री इडियट मूवी इज एन अडेप्टेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 5 पॉइंट समवन। थ्री इडियट मूवी आई होप आप सबने देखी होगी। तो वो किससे ली गई है, 5 पॉइंट समवन बाय चेतन भगत। आई अगेन चेतन भगत फिर आ गए हैं। तो चेतन भगत इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड इनकी राइटिंग्स जो है, इनकी इस वाले वर्क से 5 पॉइंट समवन इसी से ही अडेप्ट की गई है एक मूवी। इसको ध्यान में रख करके ही ये मूवी बनी है थ्री इडियट। तो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर हिज वर्क। Question number 17 is name the American poet who read a poem at John F. Kennedy's inauguration ceremony. Option number B is the correct answer, Robert Frost. Again very important writer. इनके बारे में आपको जरूर से याद रखना है। Question number 18 is who has authored the memoir of The World Within World. Option B is the correct answer, Stephen Spender. Option A, W.H. Auden. Again very important writer. Do remember his work also. Question number 19 is The Heights of Machu Picchu is a poem by. Option B is the correct answer, Pablo Neruda. Here the important writers are Gabriel Mistral, Pablo Neruda, and option C, Gabriel Garcia Marquez. Then do remember the famous work of Gabriel Mistral, Pablo Neruda. Question number 20 is Of Woman Born is a feminist book by. Option number A is the correct answer, Andrene Rich. Again Andrene Rich, important writer, Virginia Woolf. Do remember the Virginia Woolf, Mary Shelley. Again our important writers list here. One is Unveiling India is a book by. Option C is the correct answer, Anees Chung. Do remember Arundhati Roy, Anees Chung here. Question number 22 is the idiom break the ice was used first in the Shakespearean play. Here Shakespeare, a very important writer, poet and a playwright. Option number D is the correct answer, The Taming of the Shrew. Again The Tempest, very important. The Merchant of Venice, very important. Othello, very important. Question number 23 is Little Women is a novel by. Option number B is the correct answer, Louisa May Alcott. Here George Eliot is very important. 24 is Vishal Bharadwaj movie Heather is an adaptation of Shakespearean play. Option number C is the correct answer, Hamlet. Here all the four options are very important. Othello, Macbeth, Hamlet, The Merchant of Venice. Here all the work are by Shakespearean only. Question number 25 is the idiom pot calling the kettle black was first used in the novel. Option A is the correct answer, Dawn. Here Pamela and Little Women are also important. Do remember these also. 26 is Tropic of Cancer is a novel by. Option A is the correct answer, Henry Miller. 27 is Synecdoche means. Option B is the correct answer, part representing the whole. अगर आपको इस तरीके की और भी टर्म चाहिए तो मैं आपको एक शीट है मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप BA ऑनर्स इंग्लिश जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। 28 इज इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द बर्स्ट ऑफ टाइम, दिस लाइन इन एग्जाम्पल ऑफ। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक जगह बेस्ट ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक जगह वर्स्ट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो बेस्ट एंड वर्स्ट आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंटीथेसिस, जिसका मीनिंग होता है ऑपोजिट। 29 इज हम्बर्ट, हम्बर्ट इज अ पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, व्लादिमीर। Here George Eliot, Charles Dickens is very important. Question number 30 is litotes mean. Here again terminology came as same as question number 27. Here B is the correct option, use of double negative to create a positive.
तो अगर आपको इस तरीके की और भी टर्मिनोलॉजी के लिए चाहिए तो मेरे पास एक शीट है, अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिस एंड मैं आपको वो शीट प्रोवाइड कर दूंगी थ्रू माय वीडियोस। 31 इज ऑक्टेव इज एन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8 लाइन स्टैंजा, 9 लाइन स्टैंजा को क्या बोलते हैं? जस्ट कमेंट। ऑप्शन 3 लाइन स्टैंजा को क्या बोलते हैं? जस्ट कमेंट। एंड 2 लाइन स्टैंजा को क्या बोलते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 32 इज व्हाट इज xenophobia? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स। अगर स्ट्रेंजर्स की जगह पे फॉरेनर्स आता तब भी इसका आंसर ए ही होता। वाली आपको टर्मिनोलॉजी की वाली शीट चाहिए। जीनोफोबिया होता है, और भी कई तरीके की फोबिया होते हैं, जैसे खाली स्पेस की फोबिया को क्या कहते हैं, वाटर की फोबिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, एनिमल की फोबिया को क्या कहते हैं, है ना। फोबिया का मतलब होता है डर। तो इस तरीके की आपको टर्मिनोलॉजी की शीट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास प्रॉपर वे में नोट्स मेंटेन है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 33 इज यूथेनेसिया मीन्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मर्सी किलिंग। 44 इज लियोनस मीन्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूज ऑफ मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी टू कन्वे अ मीनिंग। किसी भी मीनिंग को एक्सप्रेस या किसी भी मीनिंग को बताने के लिए इतने वर्ड यूज करना कि उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। मोर देन इनफ वर्ड यूज करना। 35 इज द वर्ड सिजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए इज ओनोमेटोपिया। इसका मीनिंग होता है द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड। एग्जाम्पल जैसे कि कुकू, सिजिल। इलिप्सिस होता है कि जैसे कि 3 डॉट, कहीं कोई भी सेंटेंस दे रखा है उसके आगे 3 डॉट दे रखे हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसके आगे भी कुछ और है जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया गया होता है, तो इसका मतलब होता है इलिप्सिस। रिपीटिशन तो आप जानते हैं, बार बार जो चीज़ें रिपीट होती है। रिफ्रेन इज स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्वेश्चन नंबर 36 इज द फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम वॉज डिलीवर्ड बाय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मार्टिन लूथर किंग। हेयर मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू एंड जॉन एफ कैनेडी। अभी हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू से भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, जॉन एफ कैनेडी से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। इनकी बुक्स को, इनकी नॉवल को, जो भी फेमस इनके वर्क हैं, आप उनको ज़रूर से देख कर जाइएगा। 37 इज व्हाट इज द 7th एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन जेके रोलिंग्स हैरी पॉटर सीरीज। तो हैरी पॉटर एक सीरीज है, उसी से ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज। 38 इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइम मशीन। तो ये तो अरियंत में भी दे रखा है क्वेश्चन, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, H.G. वेल्स। 39 इज मार्क ट्वेन्स रियल नेम वॉज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सैमुअल क्लेमेंट लैंगून। 40 इज एनोफोरा मीन्स रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। तो ये टर्मिनोलॉजी की अगर आपको शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इस तरीके की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी की शीट है मेरे पास में, मैं वो आपको थ्रू वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये था हमारा BA ऑनर्स इंग्लिश एंट्रेंस एग्जामिनेशन PYQ, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और भी आपको PYQ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी कोई क्वेरी है या किसी पेपर का एनालाइजेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।